Welcome back again to your favorite channel ScholarMate GS. Friends, this channel is meant for only teacher education, and I have prepared this video for MTED, means Meghalaya Teacher Eligibility Test. Friends, let's start this video, and hope you will like my video and share with your friends. Friends, you have a part of MTED syllabus, that is inclusive education. That will you take these are two parts of this, means of you can get from paper 1 and paper 2, both the paper you will get inclusive education. What is inclusive education? How can we improve the inclusive education in our classroom situation, and how can we apply this inclusive education in our MTED exam? Okay, I will describe about this fully and elaborately, and you have to focus and you have to understand what I am saying and what I am trying to say. Okay, I will give you two languages, and sometimes I will tell with Hindi language, which will be helpful for your understanding. Friends, this is ScholarMate GS, and you can see that is a picture. You can see that those are students. Those are students who are incapable. Okay, some this guy is sitting on a wheelchair, and someone is walking through a stick. Okay, she is walking through a stick. Okay, so means of there are so different type of students. Okay, some students are different from a normal child. They are incapable to walk, to see, to hear, etc. Child we are facing in our classroom situation. We have to together them with the normal child and teaching them with the normal child. How can we improve our teaching style to teach the incapable child with special needs, means CWSN students in a one class. Okay friends, आप जो बच्चे आ रही है काफ़ी अलग है नॉर्मल बच्चों से, उसी बच्चों को कैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकें और उस नॉर्मल बच्चों के साथ आप कैसे पढ़ाएं, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, इंक्लूसिव मतलब अंतर्निहित करना, साथ लेना, टुगेदरनेस, मीनिंग ऑफ टुगेदरनेस. ओके, आप जो अलग है नॉर्मल बच्चों से, जो बच्चे अलग है उसी से आप अलग नहीं कर सकते, उससे क्लास से बाहर नहीं दे सकते, उससे अलग स्कूल आप नहीं भेज सकते. जो आप एक टीचर है उसी के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ आपको पढ़ाना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, हियर आर दोस पार्ट. दिस इज द पेपर 1. This is the paper 1. Okay, this is the paper 1 and this is the paper 2. You will get paper 2, this is 5 marks, and paper 1 for 4 marks. Okay friends, that I will suggest everything. Okay, here is the message: education not segregation. Also, education does not tell to segregate, to differentiate. Okay, it tells about to go ahead with togetherness. Okay, it tells about with togetherness. It tells about the togetherness. These are positive points. Okay, these are positive points which will be helpful for your exam. Okay, these are positive points. Together. Okay, these are togetherness. Next point, inclusive education. Here is mentioned. What are the points of inclusive education? That is, I will discuss about everything. Identification, enrollment. You have to identify who are incapable, who are capable. You have to identify, and how that child, how is incapable, whether he can see or he can't hear or he can't say or he can't walk or he can run. You have the capability to identify, and after identification you have to enroll in your school. You have to enrollment in your school. That first point is identification and enrollment. Clear friends? You have to remember these points, because you have to take these points as a positive remark. Okay, these points are positive remark. My fan is not working properly. Okay, this is a positive remark by which you can find out which points or which options are incorrect or correct. Okay, second point, assessment and distribution of arts and affluence. ओके, असेसमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट्स एंड एफ्लुएंस. असेसमेंट करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है,
आर्ट्स को और एप्लियंसेस को, ठीक है। आप जो क्लास बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसी बच्चों को भी आप असेसमेंट करना है। उसी बच्चों को आप जो आर्ट्स दे रहे हैं, जो टीचिंग आर्ट्स दे रहे हैं, जो बच्चे को साथ दे सके पढ़ने के लिए, बच्चे को क्या उसको साथ दे सके पढ़ने के लिए, ठीक से पढ़ाई कर सके जो बच्चे, वही जो डिस्ट्रीब्यूशन आप आर्ट करते हैं उसी के लिए भी आर्ट्स होना चाहिए। जो बच्चे दिख नहीं पा रही है, क्लास से पढ़ नहीं पा रही है ठीक से, ब्लैक बोर्ड को वो आँख की कमजोरी वजह से वो देख नहीं पा रही, उसी को हम बड़ा टेक्स्ट वाला बुक्स दे सकते हैं। ब्रेली का बुक्स हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्टिव सर्जरी। Corrective surgery means you have to when we want surgery, when we have any input or any mistake, जो जहाँ पर गलती हो जाती है वहाँ पर हम सर्जरी करते हैं। जैसे हार्ट की सर्जरी करा जाता है, जैसे हमारे पेट की सर्जरी करा जाता है, वैसी तरह हमको सर्जरी करना चाहिए। जो भी गलतियाँ हो जा सकते हैं हमारे ओर से और बच्चों के ओर से, हमको उसको सर्जरी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी करिकुलम और एडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेली बुक। ओके, मैं अभी बोल रहा था कि ब्रेली बुक आप कैसे दे सके। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू टीच ए जो दिख नहीं सकता है, जो कि आई कैपेबिलिटी जिसका कम है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं। हमको उसको तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, ब्रेली बुक। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेली बुक्स टू देम बाय व्हिच दे कैन एबल टू रीड प्रॉपर्ली। ओके, एंड करिकुलम एडेप्टेशन। ओके, करिकुलम जो होती है, करिकुलम जो बना जाता है उसी बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो बच्चा आपकी क्लास के अंदर है, उसी के हिसाब से आपको करिकुलम बनाना चाहिए, आपकी लेसन प्लान बनाना चाहिए, आपकी टीचिंग मेथड भी उसी तरह ही बनाना चाहिए जिस तरह जो बच्चे पढ़ नहीं पा रही है, जो बच्चे सुन नहीं पा रही है, जो बच्चे चल नहीं पा रहे, जो भी प्रॉब्लम है वगैरह प्रॉब्लम है आपकी क्लास के अंदर में है, जो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट आपकी सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डिजेबल्ड डे एंड ब्रेली डे। आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये जो वर्ल्ड डिजेबल्ड डे और ब्रेली डे है, उसको आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए, उसको आपको मनाना चाहिए। उसका रिगार्डिंग आप क्या महत्व प्रदान करती है ये जो डिजेबल्ड डे एंड ब्रेली डे, उसी को आपको बताना चाहिए आपके बच्चों को, ठीक है। उसके बाद है आपकी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कम्युनिटी एंड पीपल एंड पेरेंट्स। उसी के वजह से कैसे हम बाहर बच्चों को, जो बच्चे इनकैपेबल है, हम कैसे वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, उसी के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, जो गार्डियंस है उसी को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके साथ जो लोग हैं उसी को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। ये ट्रेनिंग होना ही चाहिए, ठीक है। उसका बाद है कंडक्टिंग ऑफ डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर मीन्स आप होल डे पढ़ा सकते हैं और होल डे आपको केयर भी ले सकते हैं, केयर देना चाहिए जो बच्चे आ रही है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। ओके, यू हैव टू मेक केयरिंग टू देम एंड बाय व्हिच दे कैन interested to teach, interested to learn, interested to read, interested to write. Okay, we have to take care of them. Okay, then awareness creation means you have to circulate the awareness among the students, among the teachers, among the parents, by which they can go ahead to teach their students, teach their children, teach their pupil. Okay, they are not any negative mind to not to teach them. Okay, they can also teach, they can also read, they can also learn, and they can also grow, and they will be anything else that we are. Okay, that a normal child are. Then barrier free environment, it is most important. Barrier free environment, it is most important. Barrier free environment means no barriers are given to them. Okay, they can do everything what he wants, what they want. Okay, not any barriers. कभी नहीं होना चाहिए, बैरियर नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये जो बातें हैं ना, वो चल नहीं सकता, वो उसका पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता, ये जो बैरियर है एनवायरनमेंट की,
वो होना नहीं चाहिए। वो देख नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं बन सकता, नहीं देख सकता तो वो कुछ भी नहीं बन सकता, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सी भी बैरियर होना नहीं चाहिए बच्चों की आसपास में, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टिंग and escort allowance. This is most important because if they are belongs to a poor family, there so much negativeness in their mind to teach them, to study them. So you have to, and the government have to provide some transporting allowance and escort allowance by which they can able to come to the school to read with normal child. Okay friends, let's go to the next point. सपोर्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सी चीज आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे कि आपकी है सेंसरी एटीट्यूड। सेंसरी एटीट्यूड मतलब आपको ये होता है कि जो एटीट्यूड आपकी है वो सेंसिटिव होना चाहिए, ये जो पॉजिटिविटी होना चाहिए आपकी एटीट्यूड में, ठीक है। उसके बाद है आपकी लर्नर स्किल एंड एबिलिटीज, ओके। उसके बाद है आपकी एक्सपेक्टेशन एंड अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि जो होने वाला है वो पॉजिटिव होगा। We have to hope that the result will be positive. Okay, we have the expectation that the result will become positive. We don't have any mind of negative by which the child, the incapable child, the CWSN child can do. They can try to do in themselves. Okay, and the physical environment should be positive. Physical environment should positive and ethos is also positive. Okay, then go to the next point, the 10 major themes of inclusion. ये जो inclusion के 10 major thing है, कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। वन है आपकी प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बनाना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए। उसके बाद आपकी फिजिकल फीचर्स भी होना चाहिए। आपकी इंक्लूसिव स्कूल पॉलिसीज होना चाहिए। आप जो बच्चे के लिए जब कोई भी आर्ट नहीं प्रिपेयर करेंगे, आर्ट नहीं देंगे, कोई मटेरियल्स नहीं देंगे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकता, वो नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं सकता ठीक से, ठीक है। ये पॉलिसीज भी इंक्लूसिव होना चाहिए। आईईपी भी होना चाहिए, जो कि आपकी स्टूडेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चों के साथ मिलना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। स्टाफिक एंड पर्सनल होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स भी होना चाहिए, असेसमेंट एंड अचीवमेंट भी तैयारी करना चाहिए, करिकुलम भी उसी तरह ही बनाना चाहिए, और टीचिंग स्ट्रैटेजी भी इंक्लूसिव एजुकेशन होना भी चाहिए। इस 10 पॉइंट पे हो जाएगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल हो ही जाएगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव फीचर क्या है? चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स। डाइवर्सिफाइड मीन्स आपकी कोई बच्चे एक ही तरह नहीं सोच सकते, बच्चे कहीं सारा से भी सोच सकते हैं, कहीं सारा काम भी कर सकते हैं। ये डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एंड सपोर्ट एंड अटेंशन। ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और अटेंशन होना चाहिए। ओके, यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स ओके, कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड अटेंशन होना चाहिए। तापर नेक्स्ट इज डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। कोई तरह की बातें, ऐसे कड़वा बातें नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ जो कि उसके मन की आघात में आ जाए, ठीक है। नो फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल। ओके, जो पढ़ा जा रहा है वही पढ़ा जाएगा, ये कौन सी बात नहीं है। आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ ही जाना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो भी बता रहे हैं उसी के साथ ही जाना चाहिए। आपकी क्लासरूम में कौन सी बच्चे, किस तरह के बच्चे, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाना चाहिए। फिक्सिंग टीचिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वेरियस मीन्स एंड मीडिया अलोंग विथ स्ट्रैटेजीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट असेसमेंट एवेल्यूएशन ये भी ठीक से होना चाहिए, ठीक है। ये था बातें, और आपको समझना चाहिए इंक्लूसिव क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है और स्पेशल क्या होता है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं। ऑल स्टूडेंट्स वेलकम्ड बाय देयर नाइबरहुड हाउस स्कूल, दिस इज इंक्लूसिव मीन्स आपको नाइबरहुड स्कूल से आपको वेलकम कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ये होता है कि डिजेबल्ड चिल्ड्रेन और लर्निंग डिफिकल्टी चिल्ड्रेन एक्सेप्टेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल में आपकी पढ़ाई जाता है, ठीक है। चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ये जो चिल्ड्रेन विद अर्थात मीन्स ऑफ CWSN चिल्ड्रेन्स आर रीडिंग हियर, दे हैव द स्पेशलिटी टू रीड इन दिस स्पेशल स्कूल। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है, सभी अपॉर्चुनिटी आपको दिया नहीं जाता है इंटीग्रेटेड में, और आपकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है आपकी स्पेशल में, ठीक है। उसके बाद आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट सेंटर्ड है, जो सब्जेक्ट दिया गया वही पढ़ा जाएगा। आपकी जो सब्जेक्ट सेंटर्ड इंगस्ट्रविक्सटी है आपकी इंटीग्रेटेड में,
और स्पेशल में आपकी स्पेशल करिकुलम है, ठीक है, स्पेशल करिकुलम बना जाता है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट नॉट सो हाई, ये मीडियम की तरह होती है, और ये जो आपकी हाई कॉस्ट होती है स्पेशल स्कूल में, ठीक है। टीचर इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस में ये शिक्षक माहिर है। और ये टीचर इफेक्टिवनेस ऑन चेंज लिमिटेड, ये चेंज नहीं होती है इंटीग्रेटेड में, टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड, ये लिमिटेड है, और जो बच्चे स्पेशल बच्चों के ही पढ़ाने के लिए ये ही सिर्फ खड़े हैं, और कोई बच्चे को भी ये पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ये इसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए फॉर्मल प्लानिंग होना चाहिए, ये इसी में कोई फॉर्मल नहीं प्लानिंग होना चाहिए। ये प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी के अनुसार ये प्लान करती है ये स्पेशल स्कूल, ठीक है। उसके बाद है ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, ओके, ये मेन स्ट्रीम स्कूल में ऐड हो जाती है बाद में। ये अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरली इंक्लूडेड मेन स्ट्रीम, ये मेन स्ट्रीम में ऐड नहीं होती है, इट कैन बी इंक्लूडेड मेन स्ट्रीम एजुकेशन विद सम स्पेशल फैसिलिटीज यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल स्पेशल फैसिलिटी होते हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन स्टाफ एंड स्पेशल करिकुलम डिजाइन फॉर देम, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल करा जाता है, नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल, और जो बच्चे CWSN है उसी के बच्चों के लिए अलग तरह की ही डिजाइन करा जाता है। और इंटीग्रेटेड में कोई भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, स्पेशल करिकुलम भी बना नहीं जाता। और आपकी स्पेशल में ये ट्रेंड होती है स्पेशल बच्चों के पढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी की तरह बना जाता है, करिकुलम भी उसी की तरह प्रिपेयर करा जाता है। आशा करती हूँ ये आपकी वीडियो आपके काम में आएगी, और निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।